So thus Eg orbitals are repelled more than T2g orbitals. Hence energy of Eg orbitals increases much more than T2g. Right? So in octahedral complexes, 5d orbitals split up into two levels. Right? And two levels कह लो या sets कह लो. So one set of two orbitals of higher energy is called Eg orbital. Second set consists of three orbitals of lower energy, जिसको हम कहते हैं T2g orbital. So d orbital split up हो जाएंगे into two levels, Eg and T2g. Right? So ये है crystal field splitting in octahedral complexes. Right? So अगर आप ध्यान से देखिए, ये free metal ion है, crystal field splitting हो रही है octahedral complex में, दिखा रही हूं मैं. पहले जब metal ion free है तो ये 5 d orbital जो हैं they are degenerate. लेकिन अगर spherical field है means ligands are at equal distance and they have spherical field around the central metal ion, तो ये जो d orbitals हैं, right, they will remain degenerate but their energy becomes higher. देखो यहाँ पे शो कर रहा है. So ये एनर्जी yes, लेकिन spherical field में degenerate ही रहे d orbitals but they become higher in energy. और अगर octahedral field है, यानी 6 लाइगेंड जुड़ गए उसके साथ आके और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उस केस में ये 5 d ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के नहीं हैं, 2 हायर इन एनर्जी हो गए. ये जो 2 हायर इन एनर्जी दिख रहे हैं आपको, Eg orbitals, and these 3 are T2g orbitals. T2g orbitals are dxy, yz and zx. जबकि Eg orbitals है they are dz square and dx square minus y square. Right? और ये जो इनके बीच में ये जो है in energy between Eg orbital and T2g orbital, right? This is called crystal field splitting. Right? ठीक है? Hello. So this is called crystal field splitting. यानी कि ये जो d orbitals हैं जब तक spherical field में होंगे या free metal ion होगा, they will remain degenerate. But in octahedral field या कोई और field, और एक tetrahedral field भी है, बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में. तो octahedral field में ये जो d orbitals हैं ये इस तरह से split up हो जाते हैं into two levels. One is Eg, another is T2g. Eg level has two orbitals, dz square and dx square minus y square, whereas T2g orbital has T2g set has 3 orbitals, dxy, yz and zx. ठीक है? और ये हम उस दिन हमने लेक्चर में किया था. dz square और dx square minus y square, इनको हम Eg बोलते हैं. E का मतलब है डबलेट, दिन पे मैंने बताया था. G का मतलब है जिरेड, सिमेट्रिकल. तो एड अनजिरेड क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे. सो इन दोनों ऑर्बिटल्स के केसेस में इनके जो लोब्स हैं they directly point towards ligands. ये जो रेड स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं, बॉल्स दिख रही हैं, ये ligands हैं. तो ये ligands नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये ऑर्बिटल्स और ligands बिल्कुल आमने सामने हैं, जिससे इनमें होती है ज्यादा रिपल्शन. सो z स्क्वायर के केस में इसके दोनों लोब्स z एक्सिस के ऊपर हैं. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के केस में ये चारों लोब्स एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है. राइट? तो वो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं टुवर्ड्स द लिगैंड, इसलिए इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी एंड दे विल बी हायर इन एनर्जी. ये हमने उस दिन डिस्कस किया था. ये T2g ऑर्बिटल्स हैं. T2g ऑर्बिटल्स dxy, yz एंड zx. और इस केस में अब आप तीनों में देखिए, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर नॉट ऑन द एक्सिस, दे आर इन बिटवीन. तो इन बिटवीन द एक्सिस होने के कारण no orbital is pointing directly towards the ligand, they are away from the ligand. Right? So ये orbital है away from the, ये देखो यहाँ सेंटर में point out हो रहा है and it is away from the ligand. So all these 3 orbitals are away from the ligand, so there will be less repulsion.
and lower in energy. Next, the energy difference between two sets of d orbitals Eg and T2g called crystal field splitting. The energy difference between two sets of d orbitals Eg and T2g orbitals के बीच में जो energy difference है, इसको हम कहते हैं crystal field splitting energy, and it is represented as delta naught. नॉट का यहाँ पे सिंबल जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, राइट. ऑक्टाहेड्रल के लिए हम इसको नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. सो डेल्टा नॉट, डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. सो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर कॉल्ड डीक्यू. एक पैरामीटर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को मेजर करने का डेल्टा, दूसरा पैरामीटर है डीक्यू. And delta and dq are related as delta is equal to 10 dq. ये dq यूनिट है, राइट. हायर क्लासेस में आप जाके इसके बारे में पढ़ोगे. So one parameter of measuring crystal field splitting energy is delta, another is dq. So delta is equal to delta naught. Naught का मतलब है, हम octahedral के लिए बता रहे हैं, it is equal to dq, right. So crystal field splitting occurs so that average energy of d orbitals does not change, known as Barry-Center rule. crystal field splitting जो है वो इस तरीके से होती है कि जो एवरेज एनर्जी है d orbitals की वो चेंज ना हो, और इस रूल को हम कहते हैं Barry-Center rule. वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट. लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप रूल, राइट. सो दिस मीन्स दैट डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर सेट. क्या मतलब है इसका, कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है कि जो डी ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी है वो चेंज ना हो, और इस रूल को हम कहते हैं बैरी सेंटर रूल. और इसमें अगर कोई सेट ऑफ ऑर्बिटल्स डिक्रीज हो रहा है इन एनर्जी, तो उसको बैलेंस करने के लिए अनदर सेट जो है वो उतना ही इंक्रीज होगा इन एनर्जी. सो फॉर टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी डी ऑर्बिटल्स की, दैट विल बी 10 dq. टोटल जो है दैट विल बी 10 dq. द एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल्स, मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूं, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में ईच Eg ऑर्बिटल आर रेज्ड बाय 6 dq एनर्जी, या इट इज इक्वल टू 3/5 डेल्टा नॉट, 3/5 टाइम्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या हम इसको कह सकते हैं 0.6 डेल्टा नॉट. एंड एनर्जी ऑफ ईच T2g orbital is lowered by 4 dq, right. Eg orbital की एनर्जी जो है it is raised by 6 dq, and जो T2g orbitals हैं उनकी एनर्जी जो है that is lowered by 4 dq, 4 dq which is equal to 2/5 delta naught or 0.4 delta naught, right. So मैं अगली स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. भाई बच्चे बहुत लेट एडमिट होते हैं, दिस इज वेरी बैड. अभी 80 बच्चे हैं पार्टिसिपेंट्स एंड 80 होने चाहिए एंड तक. सो अनदर पीपीटी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ. हाँ जी, दिख गई बेटा, दिख रही है? यस मैम. ओके. मैं इसलिए पूछती हूँ कि क्योंकि कई बार स्क्रीन नजर नहीं आती है, सो दैट्स व्हाई रिस्पॉन्ड. सो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. एक थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग का मतलब है कि डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट अप होते हैं इनटू टू सेट्स Eg and T2g. Now
उनमें कितना एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये डायग्राम हमने पहले भी देखा पीछे. सो फ्री मेटल आयन में, सो डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट अप हो गए इनटू 2 सेट्स. और ये एग्जांपल मैंने अब लिया है टाइटेनियम +3 का. दिस एग्जांपल ऑफ टाइटेनियम +3 जिसमें कि D1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मींस देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन D ऑर्बिटल. तो अगर टाइटेनियम आयन फ्री मेटल आयन है, फ्री, उसके साथ कोई लाइगेंड नहीं लगा, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इट विल ऑक्यूपाई एनी ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स. ये पांचों में से किसी एक ऑर्बिटल में हो सकता है. अगर स्फेरिकल फील्ड है तो इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज हो जाएगी, दे विल बिकम हायर इन एनर्जी, लेकिन विल रिमेन डीजनरेट. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पांचों में से किसी भी एक ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कर सकता है अपनी पोजीशन. बट अब इस टाइटेनियम के साथ के 6 लाइगेंड जुड़ जाएंगे. फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, सपोज टाइटेनियम के साथ 6 फ्लोराइड आयन जुड़ गए, इट विल फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. उस केस में क्या होगा, ये जो टाइटेनियम के और इसकी नेचुरली +3 रहेगी, और इस केस में अब जो डी ऑर्बिटल्स हैं 5, ये डी जनरेट नहीं रहेंगे, दे विल स्प्लिट अप इनटू 2 लेवल्स, E एंड T2G. EG में कौन से है, DZ² एंड DY², और T2G में है DXY, DYZ एंड DZX. राइट. अब देखो, EG ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी, T2G ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी. ये मैंने आपको पिछले डायग्राम्स में भी समझाया था. XY, YZ, ZX जो है इनके ऑर्बिटल जो है अवे फ्रॉम द लाइगेंड है, इसमें रिपल्शन कम होती है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होगी. सो ये एनर्जी हो गए. ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी का लेवल ये है, ये एनर्जी लेवल है. राइट. यानी कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10dQ, डेल्टा नॉट या 10dQ. दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू डेल्टा नॉट या 10dQ. राइट. अब ये जो EG ऑर्बिटल्स हैं दे बिकम हायर इन एनर्जी. कितने हायर इन एनर्जी हो गए, बाय 6dQ. 6dQ या 0.6 डेल्टा नॉट means each electron या each orbital is raised by 6dQ. यानी अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं तो 2 multiplied by 6 that is equal to 12dQ. and plus का मतलब है they are raised in energy, so उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है. और ये जो 3 T2G ऑर्बिटल्स हैं दे बिकम लोअर इन एनर्जी, और इनकी एनर्जी कितनी लोअर हुई है, 4dQ. यानी कि ईच ऑर्बिटल इज लोअर्ड इन एनर्जी 4dQ. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज इक्वल टू 12dQ. नाउ सी, 12dQ से एनर्जी इंक्रीज हुई, 12dQ से एनर्जी डिक्रीज हुई, तो एवरेज एनर्जी पे कोई फर्क पड़ा, बताओ? नो मैम. नो, कोई फर्क नहीं पड़ा. एवरेज एनर्जी विल रिमेन सेम. टोटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज 10dQ प्लस 6 माइनस 4. उसको ऐसे मत देखना कि 6 माइनस 4, नो. मतलब ये अगर EG ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे तो प्लस 6dQ होगा, अगर ये नीचे आ जाएंगे यानी कि लोअर इन एनर्जी होंगे तो माइनस 6dQ हो जाएगा. माइनस प्लस का सिर्फ मतलब यहाँ पे है कि हायर इन एनर्जी हो गया, एंड माइनस का मतलब है लोअर इन एनर्जी हो गया. समझ में आया? राइट. यस मैम. हाँ. सो टोटल एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स विल रिमेन द सेम, that is 10dQ. राइट. और इसको हम कहते हैं बैरी. दिस इज बैरी सेक्टर.
मीन्स d ऑर्बिटल्स हैव दिस एनर्जी, राइट? सो बैरीसेंटर का मतलब हुआ कि जितने एक कोई ऑर्बिटल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं इन एनर्जी, तो जितने से वो इंक्रीज होंगे दूसरा उतने से ही डिक्रीज होगा। अब आपको समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। हाँ, ईजी सेट में 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल की एनर्जी 6 dq से इंक्रीज हो रही है, तो 2 की कितनी होगी? 12 dq। T2g ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर एक ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है बाय 4 dq, तो 3 की कितनी हुई? 12 dq। तो अगर ईजी ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी हो रहा है, दैट विल रिमेन द सेम। अगर लो उसी को ही बैलेंस करने के लिए T2g ऑर्बिटल उतना ही लोअर इन एनर्जी होगा। दिस इज नोन एज बैरी सेंटर रूल, एंड दिस इज वेरी राइट। चलो आगे चलती हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, ये देखो ये स्माइली भी कह रहा है क्या है ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? अब इसकी डेफिनेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से डिफरेंट है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मींस द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, स्टेबलाइजेशन provided by splitting of d orbitals into 2 sets या levels is called crystal field stabilization energy। साक्षी तुम्हारे पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। CFSE, CFSE का मतलब फुल फॉर्म हुआ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन, कितनी अमाउंट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड हो रही है by splitting of d orbitals into 2 levels, Eg and T2g, that is known as crystal field stabilization energy। very important, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको बताइए what is crystal field stabilization energy। अगर हम octahedral field में देखें, in octahedral field the crystal field stabilization for each electron entering T2g orbital is -4 dq, अभी हमने देखा भी था डायग्राम में, and for EG orbital it is +6 dq। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो EG क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर वो T2g ऑर्बिटल में जा रहा है, T2g ऑर्बिटल में जा रहा है, तो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है -4 dq। अगर EG ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है +6 dq। प्लस का मतलब है तो इंक्रीज हो रहा है इन एनर्जी, माइनस मतलब है कि वो T2g ऑर्बिटल डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी is calculated as algebraic sum of -4 dq per electron in T2g level and +6 dq per electron in EG orbital। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने जब भी कैलकुलेट करनी है तो वो एक एल्जेब्रिक सम है, -4 dq पर इलेक्ट्रॉन इन T ऑर्बिटल एंड +6 dq पर इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज, आगे क्यों नहीं जाता? Yes, so crystal field stabilization energy for octahedral complexes। 10 मिनट ही रह गए हैं, अब्रप्टली मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप, अब तो पता लग गया होगा आपको। सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम डिफरेंट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होती है। हाँ जी दीपिका शर्मा, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड्स रेज किए हैं। हाँ जी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?
मैम फोन हैंग हो रहा था। अच्छा, ओके, ऑलराइट। हाँ जी, सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, पहले हम करते हैं डी और D1 सिस्टम। D1 सिस्टम मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास D ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज टाइटेनियम +3। हाँ, टाइटेनियम +3 ऑलरेडी हमने किया हुआ है। टाइटेनियम +3 मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ इसका D1 कैसे आया, क्योंकि टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 20, सॉरी, एटॉमिक नंबर इज 22। तो जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं 3d2 4s2, क्योंकि 4s की फिलिंग पहले होती है, D की बाद में होती है। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद D में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और अगर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से गया। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d1। इज दैट क्लियर? राइट। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d1, इसका मतलब है जब ये फ्री आयन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी भी 5d ऑर्बिटल्स में हो सकता है, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑक्टाहेड्रल, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं स्प्लिट अप हो गए इनटू 2 लेवल्स, Eg लेवल एंड T2g लेवल। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ, कोई बताएगा मुझे? T2g। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज आपने देखा, अगर मैं वापस करूं, ये देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, लो एनर्जी में। एक वो जो रूल्स हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के, वो हमेशा याद रखने हैं, उनको ऑलवेज फॉलो करना है। पहला है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उस ऑर्बिटल में विच इज लोअर इन एनर्जी। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो जब भी आपने कॉन्फ़िगरेशन भरनी है हमेशा इलेक्ट्रॉन को पहले लोअर लेवल में भरना है। उसके बाद दूसरा रूल याद रखना है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट इट डाउन। ऑफ बॉ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन विल गो टू लोअर एनर्जी फर्स्ट। Pauli's exclusion principle, an orbital can accommodate 2 electrons, maximum of 2 electrons with opposite spin. Right? ठीक है। तीसरा रूल, हंस रूल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि जब भी अपने ऑर्बिटल की फिलिंग करनी है, अगर वो ऑर्बिटल्स डी जनरेट हैं, जैसे ये 3 ऑर्बिटल्स क्योंकि एक ही लेवल पे हैं, मींस दे हैव सेम एनर्जी। T2g के dxy, yz and dzx, ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, दीज आर डीजेनरेट। सिमिलरली Eg के ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं दे आर डीजेनरेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है और डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं तो पहले उनको सिंगली फिल करना है, पेयरिंग शुरू होगी। सो ये चीजें तीनों रूल्स याद रखने हैं। तो जब D1 सिस्टम है तो नेचुरली अगर d ऑर्बिटल्स अब डीजेनरेट नहीं रहे, दे स्प्लिट अप इनटू 2 लेवल्स Eg and T2g। तो जो इलेक्ट्रॉन है D1 का, एक इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल गो टू लोअर लेवल, लोअर T2g लेवल ऑर्बिटल्स, और तीनों में से किसी में भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जनरेट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ नहीं जाएगा, इट इज हायर इन एनर्जी। सो जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा सबसे पहले, लोअर इन एनर्जी। So electron will go to T2g orbital first because in octahedral complexes T2g level is lower in energy and Eg level is higher in energy. इतना समझ में आ गया? Yes ma'am. ओके, अब हम करेंगे D2 सिस्टम। D2 सिस्टम का मतलब है ऐसा कोई ट्रांजिशन मेटल आयन जिसके D ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट?
ठीक है, जैसे टाइटेनियम में एक था, इसी तरह से कोई और कॉम्प्लेक्स हम ट्रांजिशन मेटल आयन का ले लें जिसमें कि डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नेचुरली इन T2G ऑर्बिटल्स, इन T2G, लेकिन पेयरिंग नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो हंस रूल फॉलो करेंगे, पहले सिंगली फिल होगा उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। सो एक इलेक्ट्रॉन, नेचुरली ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किसी भी ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं बिकॉज ऑल आर डीजनरेट, ऑल दीज 3 आर डीजनरेट। सो D2 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विल गो टू T2G लेवल्स 1 एंड दिस। तो क्रिस्टल फिल, अगर मैं कहूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, पहले तो आप लोग सिंपल कॉन्फ़िगरेशन छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते थे जैसे हमने अभी लिखी थी 3D2 4s2 या 3D1, लेकिन अगर मैं आपको कहूंगी कि मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस वे से लिखो तो आप इसी की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3D1 विच इज इक्वल टू T2G1, T2G1, यानी कि ये थर्ड शेल का जो d ऑर्बिटल है उसका d ऑर्बिटल का कौन सा सेट? T2G एंड Eg0। Eg0 लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है इसमें। सो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे T2G1, राइट? क्या लिखोगे? T2G1, राइट? सो अगर हम इसकी अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अगर मैं कि D1 सिस्टम की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी करो, मैं ये रब कर दूं जरा, फालतू की चीजें, राइट? हाँ जी। सो अगर मैं कहूं कि D1 सिस्टम की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालो, किसके लिए? फॉर D1 सिस्टम के लिए जिसमें कि T2G1 में इलेक्ट्रॉन, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है, -4, हाँ, 1 into -4, that is equal to -4dq. So its crystal field stabilization, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल में है, मल्टीप्लाइड बाय 4, लेकिन माइनस लगाना है, माइनस का मतलब है डिक्रीज इन एनर्जी, सो इट इज -4। अगर अब मैं यहाँ कहूँ आपको कि भाई मुझे D2 सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तो आप लिखेंगे T2G2, क्योंकि T2G में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं कि T2G1 1 T2G1, ऐसे नहीं, T2G इकट्ठा लिख सकते हो क्योंकि T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर मैं इसकी कहूँ आपको कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लिखो, तो इसकी कितनी होगी? -8, हाँ, 2 multiplied by -4, that is equal to -8 Q. So it is -8 dq, right? इसी तरह से अगर मैं अगली बताती हूँ, मैंने D3 सिस्टम लिखा नहीं यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे वैसे बता देती हूँ, ये भी मैं बना रही थी स्लाइड, कोई बात नहीं। सपोज यहाँ पे D3 सिस्टम है, D3 का मतलब हुआ 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, पेयरिंग नहीं होगी, हंस रूल फॉलो करेंगे, पहले सिंगली फिल करेंगे और लोअर लेवल में फिल करेंगे, ईजी में नहीं जाएंगे, ईजी हायर है, तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन भरनी है पहले लोअर लेवल भरनी है। लोअर लेवल में ये देखना है कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो सिंगली फिल करना है, राइट? तो D3 आ गया। अब अगर मैं इसकी क्रिस्टल फील्ड कहूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप लिखोगे T2G3, T2G3, और इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो इट इज -3 multiplied by -4 which is equal to -12 समझ आ रहा है सबको? इंटरेस्टिंग है वाला चैप्टर, इंटरेस्टिंग है कि नहीं मैम? इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये वाली इनऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने पीछे पढ़ी है +2 से, सॉरी